Good evening, dear participants, organizers, and resource person of today's session, Dr. Sunil Yadav sir, chairperson of today's session, Dr. Nisha Ojha ma'am. A very warm welcome and very good evening to all of you. Today we are having our session on Shrotas and Marm. For leading today's session, I would like to invite Dr. Sunil Kumar Yadav sir, who is currently working as Dean Students Welfare in the National Institute of Ayurveda and as an associate professor in the Department of Rachna Sharir, NIA Jaipur. Sir is having teaching experience of more than 14 years. He has published more than 70 articles in various national and international journals, attended various international seminars, 20. He has also been deputed as Sir has also been deputed by Ministry of Ayush in 2019 to San Francisco, USA in NAMA conference to promote various Ayush policies. Now, without taking much time, I would like to invite Dr. Sunil Kumar Yadav sir for the session. Please, sir. Sir, please unmute yourself. Yes. Good evening, everyone. And I am very much thankful to the organizers that they're giving me this opportunity to share my views regarding Shrotas and Marma, because I am a student of Rachna Sharir. So these are two very basic topics. Can I share my screen? So Sarika, it is visible? Yes, sir. Screen is visible now. Yes, sir. Yes, sir. Visible now. So, before I am starting my lecture, I to pray Lord Radha Govind Dev Ji, Om Shri Krishnaya Vasudevaya Namah. So, two things are very important for the Rachna Shari student and for the Ayurveda students. That is, one is Shrotas and other one is Marma Sharir. So there is a challenge for the Rachna. This is the institute where I am working, that is National Institute of Ayurveda, the Apex Institute in the field of Ayurveda. And this is the first national institute that was established in 1976 by the Ministry of Government of India. And this is the department where I am working in the institute, and it is highly developed, highly equipped department, lots of facilities in the department, and we are the first Ayush institute that have a virtual dissection table. So I am coming on my topic, that is Shrotas. So being a Rachna Shari teacher, that is the first challenge when the students come into the classes. They all have a background of science, but the topic that is written into the Sanskrit, and the first word means if they starting to be learning about the Srotas, there is a Vyutpatti, how this word is developed. That is the beauty of science, but the first year student, they are unable to understand that because they have a mindset of English and again the mindset of science. But so the Vyutpatti of this word, that is Shru Gato, means movement. मूव होनी चाहिए कोई चीज, किसी चैनल के थ्रू मूव होनी चाहिए, उस चैनल जिसमें से मूव होती है उसके लिए वर्ड यूज किया गया है स्रोतस.
तो वो मूव कुछ भी हो सकता है, चाहे उसके अंदर से अन्न हो सकता है या हमारे दोष मूव कर सकते हैं, अदरवाइज जो मल है वो मूव कर सकते हैं, या जो ट्रांसफॉर्मिंग जो भी चीजें हैं जो कि मेटाबॉलिक चेंजेस के दौरान ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो सब चीजें मूव करती हैं। अगर इसकी निरुक्ति देखें तो वहां एक वर्ड आता है श्रवणात् श्रोतांसी, बट हाउ वी कैन एक्सप्लेन टू अवर स्टूडेंट, मीन्स श्रवणात् मीन्स ऊजिंग होनी चाहिए, वहां फ्लोइंग होनी चाहिए, because student have a mindset that because they see in the cadaver, they are coming into the department, in the anatomy department, they have a mindset that we are going into the department and where they will dissect the cadavers. So how we will explain, because the meaning of the nirukti of this rotas is श्रवणात्, तो फ्लोइंग को कैसे दिखाएंगे? सो दैट इज दिस इज ए पार्ट ऑफ चैलेंजिंग फॉर ए रचना शायरी स्टूडेंट एंड इट इज ए पार्ट ऑफ रिसर्च आल्सो, बिकॉज जो पीजी में स्टूडेंट आएंगे, अगेन देयर इज ए चैलेंज फॉर देम दैट हाउ दे विल फाइंड द फ्लो इन द कैडावर्स, कैडावर के अंदर कैसे फ्लो ढूंढेंगे वो। सो इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्टडी कि जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर से फ्लो होना है उस स्ट्रक्चर को यदि हम हिस्टोलॉजिकली स्टडी करें, माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करें, then we will find then the vessels from there, these material will be pass on or flow or oozing, they have a special characteristic, they have a fenestration quality। क्योंकि स्रोतस की अभी डेफिनेशन जब आएगी तो वहां उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि शिरा धमनी वर्जित, शिराएं नहीं है, धमनी नहीं है, मींस ग्रेट वेसल्स नहीं है, दीज आर द स्मॉल वेसल्स, दीज आर द फाइन एंड टिनी वेसल्स एंड दे हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ ऊजिंग आल्सो। सो ऊजिंग किसमें, नॉर्मल के अंदर तो होगी नहीं ना, आपने आर्टरी या वेन्स की जब भी आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी तो वहां ये फैसिलिटी नहीं है, अगर भाई वहां से आर्टरी में से यूजिंग हो जाए या वेन में से यूजिंग हो जाए। सो दिस इज द important characteristic that these srotas have a oozing property and the walls are, they have a permeability, the fluid that is transported from one end to another end. So the characteristic of these walls are the special permeability of these walls. So it is important and it is a part of research also, because if a PG student is doing PG into the department, how he will define this definition, उसको कैसे बिलीव होगा कि स्रोतस में श्रवणात् श्रोतांसी है, इस परिभाषा को वो कैसे बिलीव करेगा? तो if the facilities are available in the department, then he should be go up to this level or more than this, and he will establish a research on this nirukti also. एंड फॉर द फिजियोलॉजी एंड अदर पीपल, क्योंकि श्रोतस वर्ड है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट से या एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, it is related to in the first year for the Rachana Shari students and also for the physiology students, and in the higher classes when he go into the Samhita, because Samhita have Charak and Sushruta also, so Charak has written these slokas into the Shariristhan and Sushrut written into the Shariristhan and Charak into the Vimanistan। तो वहां भी आचार्यों का जो कंसेप्ट था वो थोड़ा सा अलग अलग माइंडसेट के साथ था। जब चरक इसको लिख रहे थे, सो ही हैव ए आइडिया अबाउट फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, एंड व्हेन सुश्रुत वाज राइटिंग देन देयर वाज एनाटॉमिको एंड पैथोलॉजी आल्सो, क्योंकि वहां संघ के बारे में भी लिखा है। तो ऐसा संभवतः आचार्यों का जो माइंडसेट रहा होगा वो इस तरह से इन चीजों को दिमाग में रख रखा हो। जब काय चिकित्सक आते हैं, जब काय चिकित्सा में आता है स्टूडेंट, तो उसके लिए इसका सोचने का तरीका दूसरा होता है। रचना वाला सिर्फ इसके जो श्रवणात् श्रोतांसी वाली जो डेफिनेशन है उसको प्रूव करने के पर्पज से देखता है, और जो फिजियोलॉजी वाला है, क्योंकि लिविंग बीइंग के अंदर आप कैडावर की तरह डिसेक्शन करके तो नहीं देख सकते, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं, ऊजिंग के जो सिम्टम्स होते हैं, या कोई मेनिकेन्स हो सकते हैं, या कोई सिमुलेशन लैब के अंदर इस तरह की जो कंसेप्ट है उनको समझा जा सकता है।
अब कैसे ये स्रोतस बनते हैं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब डेवलपमेंट को देखते हैं, हाउ इट इज डेवलप, एनाटॉमी के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी में जब देखते हैं, सो दे हैव ए क्लियर कट आइडिया हाउ द स्ट्रक्चर्स आर डेवलप्ड, बट हियर द आचार्य हैज रिटन दैट यथार्थम ऊष्मणाम युक्तो वायु स्रोतांसि धारयेत्। कैसे समझाएंगे इस चीज को, how we will explain to our student, then how they make a concept regarding this, that वायु उनका विदीर्ण करती है तब वो स्रोतस बनते हैं। तो इसको एक मैं छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, हाउ द नर्वस टिश्यू इज डेवलप्ड, because nervous tissue is developed because the three germinal layers in the early stage and the underlying mesoderm stimulate to the ectoderm to behave like a neuroectoderm. When the neuroectoderm behave like a nervous tissue, then the neural plate is formed, and this plate like structure, how it is converted into a groove, that is very important, because the margins of both end are thicker and the middle part is going deeper and deeper, so there is a cavity is formed, and finally the two margins of either side they fused and a vessel like structure is formed. So the same thing happen into the srotas. When a srotas is formed, a vessel is formed, the same phenomena is used and the channel is developed. So again it is a part of research that किस तरह से वायु उसका वितरण करके और एक चैनल या कैनाल बनाती है, how we can explain for the anatomy purpose, for the embryology purpose, we can explain to use these tools. The modern embryology we can use for this purpose to explain these quotations. Now, if we see the srotas, the swarup, what is the, how the resemblance of the srotas? So Acharya written that Swadhatu, Samvarnani, Vrat Sthul Anuni Cha, Srotansi, Dirghani, आकृत्यानि प्रतानि सदृश्यानि च। सो यदि हमारे दिमाग में ये बात आती है, क्योंकि वी आर द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, व्हेन बीएमएस स्टूडेंट्स कम इनटू द क्लास, we try to make a image in their mind that what is स्रोतस। अगर मोटे शब्दों में कहें तो उनको कहें भाई एक नली जैसे स्ट्रक्चर है, लेकिन जब ये कोटेशन आ जाता है तो ऐसा थोड़ी होगा कि शरीर के अंदर 7 तरह के रंग होंगे। स्रोत अस्थि व स्रोतस है उसका अलग रंग होगा इस कोटेशन में, और जो मास व स्रोतस है उसका अलग होगा, प्राणमय का अलग होगा। सो हाउ द स्टूडेंट बिलीव दैट these srotas have according to, they have a color according to their dhatu. So the first example, हम एक बच्चों को जब हम मसल्स पढ़ाते हैं, so how the muscle fiber is formed, how the myofibrils are seen and how they unite the sarcolemma, sarcoplasma, and how they converted into a bundle like structure, and how they convert into the final muscle shape. So this example, it is a beautiful example that how a srotas is made, how the color of srotas, मास व स्रोतस हम यदि पढ़ा रहे हैं बच्चों को, या रिसर्च में भी यदि ये क्वेश्चन दे रहे हैं, तो मास व स्रोतस का जो कलर है वैसा ही मास का, मास धातु कैसा है जो डिसेक्शन में वो देखते हैं, जब कडावर पर जाते हैं तो आप उनको एक बल्कि मसल दिखती है। नाउ इफ एट द सेम टाइम वी एक्सप्लेन देम, क्योंकि आप स्रोतस को पढ़ाना चाहते हैं तो डिसेक्शन भी उस तरह का नहीं होता। डिसेक्शन में के लिए भी, क्योंकि मैं ओरिएंटेड हूँ थोड़ा सा रचना परक हूँ, इसलिए मेरे एग्जाम्पल भी रचना परक ही है, तो वहां डिसेक्शन का एक मेथड होता है। आप देखिए जो आचार्यों ने लिखा था कि जो एक नदी के अंदर, बहती नदी के अंदर बॉडी को लंबे समय तक रखा जाए और फिर उसको कुर्ची से उसको डिसेक्ट किया जाए। अगर आप स्कैल्पल या फोर्सेप इनका यूज करके करेंगे तो आप इस तरह की इमेजिनेशन बच्चों के दिमाग में कभी भी नहीं बना सकते। ना ही आप यदि रिसर्च का टॉपिक लेके करेंगे
और आप ये चाहें कि मास व स्रोतस में सम धातु संवर्णानी में दिखा दूं, तो आप स्कैल्पल और फॉर्सेप के बेस पे ये चीज प्रूव नहीं कर सकते। बट अगर आप ये यूज करते हैं जो आचार्य ने कोटेशन लिखा डिसेक्शन का, उसी मेथड से कुर्ची से आप यदि इसको रिमूव करते करते उस लेवल तक ले जाते हैं, then you can find, and recent or present era, the advanced tool are available. We go through the microscopic study or electron microscopic study. If the institute and department have these facility, then we can easily explain that what is the meaning of Swadhatu, what is the meaning of Samvarnani, and also the shape. क्योंकि जब फैसिकुलस बनता है तो जो बंडल बन गया वो बंडल की एक शेप है, उसका अपनी एक शेप है। जो मायोफाइब्रिल है उसकी अपनी एक शेप है। और लास्ट में आचार्य ने लिखा दैट इज प्रतान सदृश्यानी, दैट इज टेंड्रिल शेप। वो टेंड्रिल के जैसा है, प्रतान के जैसा है। तो टेंड्रिल शेप की इमेजिनेशन करने के लिए आप कैसे बताएंगे, बताइए। आप कैडावर के अंदर टेंड्रिल शेप स्रोतस दिखाना चाहते हैं, बच्चे के दिमाग में एक इमेजिनेशन होना चाहिए, चाहे वो यूजी का हो चाहे वो पीजी का स्टूडेंट हो। अगर वो रिसर्च स्कॉलर है तो उसके दिमाग में भी ये स्ट्रक्चर होनी चाहिए कि हाउ I can identify Srotas in the shape of Pratan Sadrashyani. So it can be seen by the help of these advanced tools. Those are the microscope or electron microscope. The second picture you can see, अगर मैं अस्थि व स्रोतस का एग्जाम्पल लूं, अभी अस्थि व स्रोतस, अस्थि का जो स्वरूप है उसी के जैसे अस्थि व स्रोतस होता है। तो अस्थि व स्रोतस के अंदर मेनली जो देखेंगे ट्रेबिकुलीज हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स को लेके आप एक इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि कैसे एक स्रोतस का वर्ण भी उसके धातु के समान है। क्योंकि मॉडर्न साइंस के टूल को यूज करके आयुर्वेद की चीज को एक्सप्लेन करना इजी है। सिर्फ आयुर्वेद के टूल से उस चीज को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता और एक इमेजिनेशन नहीं कर पाते। जैसे रचना के अंदर हम शरीर रचना में जब भी हम स्टडी क्लासेस में जाते हैं तो बच्चों को सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आप बीडी चौरसिया या शुश्रुत शारीर का मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, बीडी चौरसिया का ही एग्जांपल दूंगा कि आप उसको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ सकते कभी भी। या और कोई भी बुक है, ग्रेज है, मैं इतने साल के टीचिंग एक्सपीरियंस हूँ, मैं ग्रेज को कभी वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ सकता। बट if I have a image, I have a picture on the page, then it is very easy to understand. मेरे पास अगर ब्रेन का एक डायग्राम है, so I can easily, if 10 to 15 minutes I will see the diagram, then definitely if I am a new student, but I can write about something about that. तो सिंपल ही आप देख सकते हैं, अगर बच्चे को किसी भी बच्चे को अगर हम एक छोटी सी इमेज दिखा दें, he can write easily about that. बट अगर हम उसको सिर्फ लर्न करवाएं, वर्ड टू वर्ड लर्न करवाएं, देन इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न हिम एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न हिम। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स फॉर द स्वरूप ऑफ श्रुतस। नाउ आचार्य सेज द डेफिनेशन ऑफ द श्रुतस दैट मूलात खादांत देहे प्रसृतम तु अभिवाहियत स्त्रोत्रस्तद इति विज्ञेयम शिराधमनि वर्जितम। That I have already told that the srutas are not sira and not dhamni. They are not arteries, not vein, but these are the some another structures. Those are start from your toe, from your mool, and go up to खादांतर means आकाश। जहाँ आकाश का स्थान है, जहाँ अवकाश है, जहाँ आपका ब्रेन है, वहां तक ये जाते हैं। लेकिन ये they are not arteries or not vein, but these are the small capillaries. Those have a property of oozing and flowing. Those are the shrotas. So we can explain the students by the diagrams and some imaginations. Now the work, if you see the function, so
जैसा कि पहले जहां इनकी निरुक्ति आई थी स्रोतस की, उसी के आधार पे हम इसके कार्य को समझा सकते हैं इजीली कि भाई यूजिंग प्रॉपर्टी है इन जो भी चैनल्स है इनकी यूजिंग प्रॉपर्टी है, और जो ट्रांसफॉर्मिंग फेज में है उन चीजों को वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। कोई भी चीज जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, हमने जो कुछ भी खाया उसको मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जब वो धातु में पहुंचेगी तो वहां उसका और चेंजेस होंगे। उन चीजों को वन प्लेस से और दूसरे प्लेस तक ले जाने वाले जो रूट है, ये इनका कार्य है, वो सब स्रोतस है। अब स्रोतस के भेद देखें, यदि हम स्रोतस को कैसे समझाएं, दैट इज अ चैलेंज बिकॉज students they will not take interest if they don't have a imagination. So it is very important that Acharya Charak written into the Vimansthan yavantah purushe murtimanto bhav vishesha tavantah evasmin srotsam prakar विशेष। जितने भी मूर्तिमान भाव हैं, अब लैंग्वेज को ही पकड़ना बीएमएस फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, पीजी वालों के लिए भी कई बार बहुत मुश्किल होती है कि मूर्तिमंत भाव का मीनिंग क्या है। जो भी विजिबल है, जो भी स्ट्रक्चर बनी है, जितनी भी तरह की स्ट्रक्चर हमारे शरीर के अंदर है, मीन्स इफ द स्टूडेंट्स ऑन द डिसेक्शन टेबल and you are exploring the abdomen part, so they can see, or thoracic cavity they can see easily. Then at the first level they have some muscle, then bones, and they have some after that they have some viscera. So इतने तरह के यदि हमारे भाव जो हमें दिखाई देते हैं, उतने ही तरह के हमारे स्रोतस हैं, क्योंकि बिना स्रोतस का शरीर ही पूरा स्रोतस का समुदाय है। आगे आचार्य ने कहा कि पीछे एकम स्रोतमेव समुदायकम पुरुषम इच्छन्ति। अब जो स्रोतस है, इसका समुदाय का नाम ही शरीर है या पुरुष है। यदि पुरुष का मीनिंग करें तो पुरुष इक्वल टू समुदाय ऑफ स्रोतस। बिना स्रोतस के पुरुष का अस्तित्व नहीं है। अब इसको और माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाए तो, क्योंकि एक बड़े रूप में तो आपको दिख रहा है कि एक प्राण व स्रोतस है जिसके मूल में हृदय है, बड़ी स्ट्रक्चर दिखी। लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं हम यूजिंग प्रॉपर्टी कह रहे हैं। जब अगर हम पहली परिभाषा पे जाए जहाँ निरुक्ति हुई थी कि दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग एंड यूजिंग, तो फ्लोइंग तो कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, लेकिन यूजिंग का कहाँ होगा? ये तो फिर कंसेप्ट ही गलत हो गया। तो यहाँ आचार्यों का कहना है कि स्रोतो मूल इज समथिंग डिफरेंट एंड स्रोतस इज समथिंग डिफरेंट। श्रोतस इज डिफरेंट थिंग एंड श्रोतो मूल इज डिफरेंट थिंग। तो ऐसे ही अगर एडवांस और एडवांस लेवल पर हम इसको और आगे स्टडी करें तो जैसा कि आचार्य ने कहा कि ये अपरिसंख्य है, इनकी काउंटिंग करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अगर हम और डीपर लेवल पे जाएं। सो स्टूडेंट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड दैट द मूल इज हार्ट, but when we go on the advance, then there is arch of aorta, then arteries, and arteries they can further divided into the capillaries, and finally the capillaries they are goes into the tissue level. So they can understand जो, क्योंकि इनके बिना अगर हम इसको सबको एक तरीके से एब्सेंट मान लें तो पुरुष का अस्तित्व नहीं है, तो इनके समुदाय से ही। तो डेफिनेशन को जो शुरू में लिखी, चरक ने लिखी है, उस डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू डायग्राम, थ्रू कैडावर, थ्रू वर्चुअली। देन दे बिलीव दैट the acharya written each and every word is very impressive, and it is very relevant to the modern science also and in present era also. Now the number of स्रोतस, if you see the number of स्रोतस, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, समझाना भी बड़ा इजी है। नवद्वार है तो ये सारे नवद्वार हमारे स्रोतस हैं, और स्त्रियों के अंदर ये 3 अधिक हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, जैसा कि मेरा अपना सोचना है कि जो हमारे रोमकूप है या लोमकूप है, क्या जैसे स्रोतसों की संख्या अपरिसंख्य है,
इसी तरह से क्या इनको बहिर्मुख स्रोतस के अंदर कंसीडर कर सकते हैं? स्वेदवय स्रोतस में हम कंसीडर करेंगे, लेकिन जो बहिर्मुख स्रोतस हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टडी एंड पार्ट ऑफ रिसर्च। अभी एक रिसेंट स्टडी चल रही है कि डिपार्टमेंट में ये है कि पादभ्यंग के द्वारा नेत्र ज्योति के ऊपर जो काम है, क्योंकि अष्टांग का रेफरेंस है, पादभ्यंग करते हैं हम तो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो किस तरह से पाद अभ्यंग आंखों की रोशनी बढ़ाता है? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टडी, और इसका रेफरेंस है कि दो हमारी जो नाड़ियां हैं, क्योंकि स्रोतस, मर्म और नाड़ी, तीन चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी हाइपोथेटिकल है, बट अगर आप मॉडर्न पढ़ते जाते हो और फिर आयुर्वेद को भी बहुत उतनी गंभीरता से पढ़ते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ रास्ते बनते नजर आते हैं, और वो फिर एक अच्छी रिसर्च में भी कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द रिसर्च दैट वी आर डूइंग इनटू द डिपार्टमेंट, दैट हाउ द पादभ्यंग इज यूजफुल इनटू द इम्प्रूवमेंट ऑफ विजन। क्योंकि वी आर स्टूडेंट ऑफ रचना शायरी, सो वी आर ट्राई टू एक्सप्लेन इट through the virtual dissection, or maybe possible we will go through the cadavers if there any correlation will be developed. अगर अंतर्मुख स्रोतों की बात करें तो चरक और सुश्रुत का बहुत बड़ा मतभेद नहीं है, कुछ मतभेद है, कुछ चीजें चरक ने मानी है, कुछ सुश्रुत ने अलग मानी है। तो तीनों आचार्यों ने, क्योंकि तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, प्राण, वायु बहुत इंपॉर्टेंट है, जल होना चाहिए, अन्न, इन तीनों चीजों का वहन करने के लिए जो अंतर्मुख स्रोतस होने चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद का जो बेसिक कंसेप्ट है दैट इज धातु, तो सभी धातुओं के लिए स्रोतस होने चाहिए, और जब कोई भी चीज ट्रांसफॉर्मिंग फेज में जाते जाते वो कन्वर्ट होती जाती है तो वो मल स्वरूप में बन जाती है, तो उनके वहन के लिए भी ये स्रोतस होने चाहिए। एंड इन फीमेल्स द एडिशनल स्रोतस, जो कि गर्भ प्रकरण में आचार्य चरक ने लिखा है, आर्तव्य स्रोतस, उनका विवरण अंतर्मुख स्रोतस के रूप में मिलता है। तो इसी तरह से आचार्य सुश्रुत ने भी इन्हीं चीजों को माना है। स्रोतो मूल की बात करें तो जैसे मैं अभी प्रीवियस स्लाइड में कह रहा था कि जो स्रोतो मूल हैं और स्रोतस हैं, दोनों में बेसिकली डिफरेंस है, और स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा जो कंफ्यूजिंग है वो यही है कि व्हाट आर स्रोतो मूल एंड व्हाट इज स्रोतस। आइदर दीज आर सिमिलर थिंग्स और आइदर दीज आर डिफरेंट थिंग्स। अभी प्राण व स्रोतस के मूल लिखे हृदय और महास्रोतस, यू कैन इजीली एक्सप्लेन। हृदय देखता है बच्चा, हार्ट देखता है, अगर वहां भी हम हृदय को कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। और महास्रोतस का मतलब जो भी बड़े जो पैसेज हैं 2000 महास्रोतस, कोस्ट भी उसमें शामिल करते हैं बहुत सारे आचार्य। अब आचार्य सुश्रुत ने कहा हृदय रसवाहन निश्चित दमन्य। अब रस का वहन करने वाली और प्राणों का वहन करने वाली धमनियां सेम है। अगर हम आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो जो रस का वहन करती हैं वही धमनियां हमारे प्राणों का भी वहन करती हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा सा इसको और रिलीवेंट कर दिया, थोड़ा सा और पेक्युलर कर दिया कि जो रसवाहिनी धमनियां हैं वही प्राणों का भी वहन करती हैं, और जो श्वसन की जो क्रिया होती है ये इस प्राण व स्रोतस के थ्रू होती है। तो ये सारा जो कंसेप्ट है ये माइन्यूट लेवल पे है, और एक चीज बहुत बेसिक है जो कि समझना जरूरी है, स्रोत मूल अलग है और स्रोतस अलग है। स्रोतो मूल मीन्स जो आपको दिखाई दे रहा है, जो जहां से उसकी उत्पत्ति हो रही है, और उसके बाद आगे जो ट्रांसफॉर्मिंग पार्ट वाला है वो स्रोतस वाला पार्ट है। इसी तरह से अगर हम उदक व स्रोतस की बात करें तो उदक व स्रोतस के अंदर जाएंगे। अभी मैं आगे ले लेता हूँ स्लाइड कुछ इनको छोड़ के। अच्छा रो, तो उदक व स्रोतस का अभी देखिए, उदक व स्रोतस में जो मूल बताए हैं वो तालु और क्लोम है। तो दो वर्ड हैं और दोनों आचार्य इसमें सहमत हैं, तालु और क्लोम होना चाहिए। अब क्लोम शरीर रचना का सबसे विवादास्पद विषय, जिसपे दुनिया भर की कमेंट्रीज लिखी जा चुकी हैं, बट टिल टुडे
अगर आप पहले एक क्वेश्चन सिंपल इंटरव्यू में किसी स्टूडेंट से पूछे, 5 स्टूडेंट यदि इंटरव्यू देने वाले हैं, पांचों का मंतव्य अलग अलग होगा। 5 विद्वान बैठ जाए, उनका मंतव्य अलग अलग होगा, लेकिन दोनों आचार्यों का मंतव्य सेम है, दैट तालु एंड क्लोम। अब तालु का क्या रिलेशन है भाई उदक व स्रोतस से, और क्लोम का क्या माने। तालु पायलट हो गया अगर मॉडर्न एनाटॉमी देखें, और यदि क्लोम की बात करें तो क्लोम के ऊपर यदि हम जाते हैं तो सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि उदक व स्रोतस से रिलेटेड है इसलिए हम उसको सुप्रारीनल ग्लैंड मान के चल रहे हैं। तो क्या उदक व स्रोतस का मतलब ये है कि जो पीने वाला पानी जिस स्रोतस के थ्रू ट्रैवल होता है दैट इज उदक व स्रोतस? नहीं, ऐसा नहीं है। जो उदक व स्रोतस का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर जो भी लिक्विड है, जो भी जल स्वरूप है या आप प्रधान है, वो सब उनका वहन करने वाला स्रोतस मीन्स आपके जो लिम्फेटिक्स है। अब जिन पेशेंट के अंदर अगर आप इसको क्लिनिकली ओरिएंटेड देखें तो जिन पेशेंट जो जलोदर के पेशेंट है उनके अंदर एक तृष्णा का लक्षण आता है, क्योंकि इनका जो विद्ध के लक्षणों में जाकर जाएंगे तो तृष्णा का एक सिम्टम आता है। तो जो तालु और क्लोम का संबंध उदक व स्रोतस से किस लिए किया गया? जब उदक व स्रोतस में अवरोध होता है तो शरीर के अंदर जो जल का जो लिक्विड है या लिम्फ है उसका फ्लो नहीं हो पाता, और वो आपके पेरिटोनियम में इकट्ठा होने लगता है और वो आपको एसाइटिस फॉर्म में दिखाई देने लगता है। उन पेशेंट का एक सिम्टम भी है, अब उनको प्यास बहुत ज्यादा लगती है। अब इससे संबंध क्या है? जो प्यास का लगना या आपको जो थ्रस्ट है उसका सेंसेशन आपको सबसे पहले कंठ में या तालु में फील होता है। तो संभवतः आचार्यों ने एक इसी चीज को मानते हुए कि जो तालु है, जो उदक व स्रोतस है, इसका जो मूल है वो तालु है, क्योंकि सेंसेशन वही उसका फील होता है, और जो सुप्रारीनल ग्लैंड्स है ये आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को वो करेक्ट करती है, तभी आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन या जो रिटेंशन नहीं होना है ये उसी पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से कुछ क्लिनिकल स्टडीज भी की जा सकती हैं जो कि आगे काय चिकित्सा इन सबके विषय होते हैं। तो इस तरह से स्रोतस के जो कार्य हैं और स्रोतस के विद्ध के जो लक्षण हैं उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। स्रोतोदुष्टि की यदि बात करें तो स्रोतो दृष्टि या कोई भी दुष्टि शरीर में किसी भी तरह की दुष्टि होती है, क्योंकि दो ही चीजें होती हैं जिनसे दुष्टि होती है या कुछ ही तरह की बीमारी होती है, एक तो आपका आहार और दूसरा आपका विहार। यदि आहार आपका दोषों को प्रकोपित करने वाला होगा तो उसी तरह के आपकी व्याधियां उत्पन्न होंगी, और जिस तरह का आपका विहार होगा, देर रात्रि जागरण या कुछ इस तरह का विहार होगा, तो उसी तरह से आपका स्रोतो दुष्टि होंगी और उसी स्रोतों से संबंधित वो सब चीजें आपको परिलक्षित भी होंगी। तो 4 रूप में ये परिलक्षित होती हैं। अति प्रवृत्ति, हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा स्रोतों की मतलब जो एक्टिविटी अगर बढ़ जाए तो उस फॉर्म में दिखाई दे सकती है, या फिर संघ के रूप में अवरोध हो गया, स्टैग्नेशन हो गया, शिरा ग्रंथि ऑब्स्ट्रक्शन विद स्वेलिंग हो, और या विमार्गमन हो। तो अति प्रवृत्ति का अगर देखें कि जब स्रोतो दुष्टि हो गई, मीन्स आपने आज जो कुछ खाया जो आपके जो महास्रोतस है उसको दुष्ट करने वाला था, तो अति प्रवृत्ति होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और वो मल स्वरूप में या जिस भी स्वरूप में है उसकी बार बार संज्ञा। ये एक डायरिया का एग्जाम्पल है। अश्रकधर के अंदर भी देखिए, जिन महिलाओं में आर्तव स्रोतस की दुष्टि हो जाती है तो उनमें अत्यधिक ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, और ये स्टडी का पार्ट भी हो सकता है। इसी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन का देखिए, जब स्टैग्नेशन होता है तो जो स्रोतस जो चैनल आपका रस्व है या रक्तव है, जो स्रोतस था वो स्रोतस जब आप प्रॉपर वे में काम कर रहा था तो आपका जो भी उसकी कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं दे कैन मूव इजीली और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो रहा है। लेकिन जब स्रोतो अवरोध होता है रक्तवाह स्रोतस के अंदर तो उसकी जो वॉल है उनमें आर्थरोस्क्लेरोसिस डेवलप होता है और उसकी वजह से वो संग होके और ये रुकावट हो जाती है। इसी तरह से जो शिरा ग्रंथि एक जो तीसरा जो लक्षण है एन्यूरिज्म का, जब ऑब्स्ट्रक्शन विद स्वेलिंग हो रहा हो तो दैट इज
श्राग्रंथि, ये श्रोतस के जो उसके लक्षण है उसमें आ जाता है। और चौथा जो लक्षण है विमार्ग गमन, जब स्रोतोदुष्टि होगी तो जो जिस स्रोतस का पैसेज है उसके विपरीत दिशा के अंदर से वो जो दोषों को जो चलायमान जिस दिशा में होना चाहिए उसके विपरीत दिशा में वो चलायमान हो जाते हैं। ये सर्जिकल भी हो सकता है, जैसे कि ये फिस्टुला बिटवीन रेक्टम एंड वेजाइना, एंटेरोवेजाइनल जो फिस्टुला डेवलप होना, दीज आर द केसेस ऑफ विमार्ग गमन। तो इस तरह से ये स्रोतस वाला कंसेप्ट, क्योंकि 1 घंटे का क्लास है, आई वांट टू कंप्लीट माय सेकंड टॉपिक दैट इज मोर इंटरेस्टिंग, that is marma point. So this is all about a brief knowledge about the srotas, what the Rachana student or what a Rachana teacher think about that. So the second topic, that is marma point. So again it is a interesting topic for the Ayurveda student, and this science is developing very fastly, क्योंकि इस जमाने के अंदर कोई भी दवाई खा के खुश नहीं है, कोई दवाई नहीं खाना चाहता, बिना दवाई के ही अपना ट्रीटमेंट चाहता है। तो nowadays marma therapy is day by day going very popular. So how we can use, क्योंकि सुश्रुत ने तो क्लियर कट लिखा है कि मर्मों का परिरक्षण करना चाहिए। अब चिकित्सा में इसका कैसे उपयोग करना है या चिकित्सा का रेफरेंस क्या है? सो इट इज क्लियरली रिटर्न इन चरक संहिता आल्सो, त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय, और बहुत सारे चरक संहिता के ही रेफरेंस हैं जो मर्म चिकित्सा से संबंधित है। इसके अलावा सिद्धा साइंस दे हैव ए रिटन डॉक्यूमेंट इन ताम्रपत्र और सो मेनी थिंग, एंड दे रीएस्टैब्लिशिंग दिस थेरेपी। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये पिक्चर बहुत बार देखी होगी, अनेकों जगह देखी होगी कि ये पिक्चर महाभारत की है कि भीष्म पितामह लेटे हुए हैं और उस पूरे शरीर के ऊपर बाण ही बाण लगे हुए हैं, लेकिन भीष्म पितामह तब भी जीवित हैं, पूरे युद्ध को वो देखते हैं और तत्पश्चात वो अपने प्राणों को त्याग करते हैं। तो ऐसी क्या विद्या थी? हालांकि जो माइथोलॉजी है उसके अंदर ये है रेफरेंस, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो इच्छा मृत्यु भी उनके द्वारा कैसे प्राप्त की गई? इच्छा मृत्यु का भी तो कोई होगा। तो आप ये इट इज अ टूल टू हाउ टू एक्सप्लेन आवर साइंस टू द young students. Those are they have a mind setup of modern science. They want to be become a MBBS student, but unfortunately or fortunately they are now in Ayurveda. But they, if we create interest in our science with the photographs, with the pictures, then they will believe and they will enjoy the studies. It is our duty. तो जब हम इनकी एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं मर्म शारीर को, तो मर्म शारीर के अंदर जब हम बताते हैं कि मर्म की परिभाषा के अंदर आखिर में आता है विशेषण प्राणस्तिष्ठन्ति। अब मर्म बिंदु सिर्फ 5 संरचनाओं का संगम स्थल नहीं है, उस जगह विशेष रूप से प्राण भी स्थित होते हैं। अब बच्चा प्राण का मतलब सिर्फ समझता है जीवन, जीवित होना, जबकि हमारे यहाँ आचार्यों ने अग्नि, सोम, वायु, सत्वरज, पंचेंद्रिय और भूतात्मा, इन सभी को प्राण की संज्ञा दी है। तो इसको एक्सप्लेन करने के, क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ये इतने मतलब जो वॉरियर्स थे, मीन्स अर्जुन एंड अदर, दे, और आज की डेट में भी जो मिलिट्री के अंदर भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, दे आर वेल वर्स्ड, हैव ए गुड नॉलेज अबाउट विच पॉइंट इज वेरी मच वल्नरेबल टू डैमेज। उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है कि कहाँ मारना है और कहाँ नहीं मारना। तो दिस इज वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग टू द हाउ द मर्म कैन बी एक्सप्लेन। अब मर्म जो चिकित्सा है या मर्मों को आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो मर्म थेरेपी है आज की तारीख में, जो एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर जो भी चल रहा है, चाइना की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मर्म साइंस। फिजियोथेरेपी के अंदर भी आप देखिए, they use a technique to press the certain area. मर्म थेरेपी इटसेल्फ, मर्मों का रिलीवेंस वहां पे भी है,
योगा साइंस के अंदर मैं कुछ अभी आपको आगे एग्जांपल देने वाला हूँ कहाँ कहाँ इनका यूज किया जा सकता है। मार्शल आर्ट के अंदर भी ये इनका बहुत, सेल्फ डिफेंस के अंदर इनका बड़ा यूज है। लेकिन अगेन एक चैलेंज आता है कि क्योंकि मर्म थेरेपी के जो इफेक्ट है, हाउ वी प्रेस द तल हृदय मर्म एंड हाउ आवर हार्ट विल वर्क, means our heart will work normally, yeah, your blood pressure comes down to stimulate the tal hriday marm। लेकिन एनाटॉमी के बेस पे, जो कैडावरिक एनाटॉमी है उसके बेस पे इसको एक्सप्लेन करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कैडावरिक एनाटॉमी इज समथिंग डिफरेंट, शरीर रचना इज समथिंग डिफरेंट। आचार्य टोल्ड दैट वी हैव 14 मेजर आर्टरीज, 14 मेजर आर्टरीज, और उन्हीं आर्टरीज की फिर, क्योंकि एक पॉइंट में मिस कर गया, स्रोतस के अंदर स्रोतस के जो पर्याय हैं वहां नाड़ी, पंथान, ये सब वर्ड यूज किए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जो पार्ट है आपका स्रोतस से ही लिंक्ड है। किस तरह से आपकी 14 जो प्रधान नाड़ियां हैं, जिनको आचार्य ने प्रधान नाड़ियां बताई, फिर उनके सब डिवीजन हुए और उनसे छोटी नाड़ियां बनी। और इस तरह से, जैसे जो मैंने एक एग्जांपल दिया था, वी आर डूइंग स्टडी इन अवर डिपार्टमेंट दैट पादाभ्यंग, हाउ पादाभ्यंग, आचार्य गलत तो हो नहीं सकते, पादाभ्यंग करने से चक्षु बढ़ती है, आपकी ज्योति, नेत्र ज्योति बढ़ती है। तो ये कैसे सिद्ध किया जाए, उसका बेस कैडावरिक एनाटॉमी या जो हम डिसेक्शन करते हैं उसके बेस पे फाइंड करने का प्रयास है। लेकिन अभी तक जो लिटरेचर है, जो ग्रेज एनाटॉमी या जो भी आपके कनिंगम डिसेक्टर वगैरह है, ये उस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते कि भाई पादाभ्यंग से आपकी नेत्रों के साथ कोई उसका संबंध है। बट these nadis are, they have a great idea, they give a great idea about that, कि जो ये नाड़ियों का जिस तरह का स्वरूप है, जिस तरह से नाड़ियों का कोर्स है, इन नाड़ियों का कोर्स बताया है आचार्यों ने, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि दो नाड़ियां जो कि हमारे पाद तल पे हैं, उनको यदि हम उनके ऊपर स्टिमुलेशन जाता है तो वो नाड़ियां हमारे नेत्रों तक जाती हैं और उनसे नरिशमेंट होता है। तो वही स्टडी का पार्ट है, वो रिसर्च का पार्ट है, एंड वन पीएचडी स्कॉलर डूइंग दिस वर्क। तो इसी तरह से मर्म का जब एक्सप्लेन करते हैं, मर्म थेरेपी को अब जब हम एक्सप्लेन करते हैं, तो मर्म थेरेपी को एक्सप्लेन करना मॉडर्न साइंस के या मॉडर्न एनाटॉमी के बेस पे कर पाना टिपिकल है। लेकिन आयुर्वेद साइंस में जो नाड़ी लिखी गई है, आयुर्वेद साइंस के अंदर जो नाड़ियों का स्वरूप लिखा है, नाड़ियों का जो कोर्स लिखा है, उसके बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। 3 प्रधान नाड़ियों के साथ साथ 14 फिर और नाड़ियां बताई हैं। इसके अलावा भी नाड़ियों के फिर सब डिवीजन मिलते हैं जो वैदिक साइंस के अंदर मिलता है, उन्हीं के बेस पे ये स्टडी की जा रही है। अभी देखिए, अब हम जो क्लासरूम में जाते हैं और आप नाभि जो मर्म है उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स को अगर आप नाभि मर्म एक्सप्लेन करना चाहते हैं, या आप नाभि आपका प्रधान स्थान है, नाभि जो चक्र है, नाभि जो मर्म है वो आपका प्रधान स्थान है, और नाभि सभी उनका शिरा और धमनियों का उद्भव स्थल भी है। इन सब चीजों को जब आप इसमें पढ़ते हैं सुश्रुत और चरक के अंदर, और मर्म के रूप में पढ़ते हैं, तो अब आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक इंटरेस्टिंग अगर आप मेथड देखें, इसको कैडावर के बेस पे भी या डिसेक्शन के बेस पे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक रेफरेंस जो हमारे रामायण में मिलता है कि जो रावण थे, जब उनका वध नहीं हो पा रहा था, तो भगवान राम को कहा कि भाई आप इनके नाभि के अंदर यदि मारेंगे तो ये मर जाएंगे। तो वहां एक रेफरेंस मिलता है इसके सपोर्ट में, वहां अमृत था। तो अमृत क्या है आपके पास, आपके शरीर में अमृत क्या है अलग से, आपके शरीर में से क्या निकाल दिया जाए कि जिससे कि फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो अमृत हमारा रक्त है। और यहाँ देखिए ग्रेट वेसल्स हैं जो आपके एब्डोमिनल अराटा और ये सब हैं, जो ग्रेट वेसल्स इस रीजन से जा रही हैं। तो अगर ग्रेट वेसल्स डैमेज हो जाती हैं तो मृत्यु निश्चित ही है।
तो आप ऐसे एग्जाम्पल से यदि चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो यूजी स्टूडेंट हो चाहे वो पीजी स्टूडेंट हो, they will never forget, and they also believe in your ancient science, and that the part of research. Then he will compare the things that we have a abdominal aorta, and that abdominal aorta is passes from there. So if the profuse bleeding occur here, then the definitely death will be there. इसी तरह से शंख मर्म की बात करें, सद्य प्राण हर मर्म है, लेकिन अब सद्य प्राण हर मर्म कैसे काम करता है, कैसे मृत्यु होती है सद्य प्राण हर मर्म में। अगर शंख मर्म को अगर आप देखेंगे तो इसकी पोजीशन यहाँ है, ये देखिए, दिस इज द टेरियम रीजन, द जंक्शन ऑफ 4 डिफरेंट बोन। तो 4 बोन जहां जुड़ के एक स्थान बनाती हैं, वो स्थान आपका शंख मर्म है। और बहुत पहले एक मूवी आई थी, इंडियन मूवी कमल हसन की, तो कमल हसन की उस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर था वो फिंगर्स को ट्विस्ट करके और कनपटी पे ही मारता था। और दिल्ली के अंदर भी काफी एक इस तरह का किलर फेमस हुआ था, कनपटिया, ये कनपटी पे मारने से और उसकी डेथ हो रही थी। तो अब आपको बच्चों को क्रिमिनल स्टोरीज तो सुनानी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा फिल्मों के रेफरेंस भी देने पड़ते हैं, एंशेंट के साथ साथ जो आज बच्चे पसंद करते हैं स्पोर्ट्स को या फिल्मों को, उनके भी रेफरेंस देने पड़ते हैं। तो जो शंख मर्म है, इसका यदि हम देखें तो द पोजीशन ऑफ द शंख मर्म एट द रीजन ऑफ टेरियम, एंड टेरियम इज ए जंक्शन ऑफ 4 different bone and a artery that is passes from here, that is middle meningeal artery. तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी बहुत सुपरफिशियल होती है। इस सुपरफिशियल आर्टरी होने की वजह से जब ये यहाँ डैमेज होती है, रप्चर होती है, तो जो ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से डेथ होती है। और दूसरी वजह ये भी है कि जो भी अभी इस मीटिंग के अंदर रचना के स्टूडेंट होंगे, इफ दे हैव डन द क्रेनियोटोमी, then they can easily feel that when we do the craniotomy, जब आप क्रेनियोटोमी करते हैं तो आपको इस रीजन में आते ही आपके जो जिस भी उससे ऑर्गन आप उससे कट करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक कटर हो चाहे मैनुअल कटर हो, तो यहाँ आते ही इस रीजन में आते ही आपको बोन की थिकनिंग का एहसास होता है। इस रीजन के अंदर जो बोन है उसकी थिकनेस सबसे कम होती है, वो इजीली रप्चर हो जाती है, मतलब आप ब्रेन के अंदर डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन एक्सप्लेन द शंख मर्म, हाउ इट इज सद्य प्राण हर मर्म, कैसे सद्य प्राण हर मर्म है, तुरंत मृत्यु कैसे हो सकती है। तो these studies, these examples, these picturization, they are very much helpful, very much interesting to the students. Now the स्थपनी मर्म, स्थपनी मर्म है, इसके बारे में बताएं कि स्थपनी मर्म, क्योंकि मर्म विद्या 2 तरीके से चल रही है और ये बरसों से चली आ रही है, जिसको हम नोइंगली और अननोइंगली अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे कि स्वमर्म चिकित्सा भी होती है। स्वमर्म चिकित्सा का मतलब है कि आप अपने मर्मों को एक कंट्रोल प्रेशर के द्वारा आप इसको स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। तो यदि हम षड चक्रों की बात करें तो मूलाधार से शुरू होते होते आज्ञा चक्र तक आ जाते हैं। तो आज्ञा चक्र के अंदर देखें तो वो आज्ञा चक्र बेसिकली आपकी जो दोनों साइड के जो भ्रू मध्य के अंदर एक जो मर्म स्थान है जिसको स्थपनी मर्म कहा है, और यही आज्ञा जो चक्र है ये आपका सीट ऑफ विजडम भी है, ये आपकी बुद्धि का स्थान भी है। तो इस स्थान की जो एनर्जी है उसको स्टिमुलेट करने के लिए स्त्रियां कंटिन्यू बिंदी लगाती हैं और पुरुष भी जो उसमें तिलक, जैसे हम मंदिरों के अंदर जाते थे पहले, दक्षिण भारत में नियमित रूप से लगाया जाता है। जो लोग दक्षिण भारतीय हैं वो डेली आप जब भी वो अपने प्रेयर वगैरह करते हैं उसके बाद उनके तिलक लगाने का है इस स्थान पे। तो ये सीट ऑफ विजडम होने की वजह से, क्योंकि बुद्धि का स्थान है, यहाँ एनर्जी कंट्रोल रूप से अगर स्टिमुलेशन रहते हैं तो वो सब चीजें कंट्रोल करती है। तो इसलिए ये थोड़ी सी रिलेवेंस है इन चीजों का जो स्वयं चिकित्सा बताते हैं उसके लिए।
इसी तरह से अधिपति मर्म का यदि रेफरेंस देखा जाए तो अधिपति मर्म है, अधिपति मर्म भी हमारे शेष चक्र के अंदर आता है। तो हम जो पुराने हमारे आचार्य थे वो शिखा रखते थे, जिसको कि हम एक चोटी रखना कहते हैं, और हिंदू धर्म के अंदर अब भी रखते हैं, सभी जो पुराने लोग हैं चोटी रखते हैं, क्योंकि सहस्त्र चक्र का स्थान होने की वजह से, बुद्धि का स्थान होने की वजह से, और ऊर्जा जो कंट्रोल उसको स्टिमुलेशन देने के लिए इस स्थान पे शिखा रखने का प्रावधान है। तो ये मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपको अगर आप एनाटॉमी की वजह से देखें, एज ए एनाटोमिस्ट देखें, तो ब्रेन का यदि कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ साइनस देखें तो उसका ये स्थान है। तो कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ के स्थान होने की वजह से ये इस जगह आपकी जो वैल्यूबिलिटी है वो कंपैरेटिवली और स्थानों की तुलना में ज्यादा है, इसलिए इसके रक्षण हेतु भी इसका शिखा को धारण करने का हमारे आचार्यों का एक प्रावधान था। विटप मर्म का देखिए कि हम हमेशा जो भी अभ्यास करते हैं, जो भी आसनों का अभ्यास करते हैं, हम पद्मासन में करते हैं अक्सर। तो पद्मासन के अंदर जब हम बैठते हैं तो हमारी जो एड़ियां हैं उनकी पोजीशन देखिए, वो आपके विटप मर्म के ऊपर ही लगते हैं। आप नियमित रूप से करते हैं अभ्यास तो वो आपके हमेशा जो एड़ियों की जो पोजीशन है, यदि आपकी जो थाइज है वो उस कदर आराम से अगर आप कर पाते हैं तो करेक्ट जो पोजीशन है उसमें एड़ियां आपके विटप मर्म को ही टच करती हैं। तो साधु संत जो भी थे या जो तपस्वी हैं, जो आज भी तपस्या करते हैं, क्या दूसरी पोजीशन में नहीं बैठ सकते थे? क्या आराम से बैठ जाते, सीधे बैठ जाते, या किसी चेयर पे बैठ जाते? इसी पोजीशन को अडॉप्ट करने का कारण क्या है? देयर इज ए डेफिनेट रिलेशन विद द विटप मर्म, because the stimulation by the heels on the vitab murm that suppress the urge of sex and other activities like this. So these references, they the students can believe on their science, the ancient science, कि ये इस तरह का जो स्टिमुलेशन, यदि हम विटप मर्म को एक कंट्रोल स्टिमुलेशन देते हैं, दैट इज वेरी यूजफुल। जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है उनके अंदर भी है, और जो इस तरह की जो साधना करते हैं उनके लिए भी ये नियमित रूप से स्वाभ्यास से किया जा सकता है। अब मर्म थेरेपी, क्योंकि मर्मों के अगर आप भेद पढ़ेंगे तो सभी मर्म के अलग अलग उनके भेद बताए, कोई सद्य प्राण है, कोई विषय लग्न है, कोई वैकल्यकर मर्म है। सभी मर्मों को एक जैसा स्टिमुलेशन नहीं दिया जा सकता। सो इट इज अगेन पार्ट, नाउ दिस पार्ट इज रिलेटेड टू द रिसर्चर्स, जो रचना के रिसर्चर्स हैं उनके लिए, और जो शल्य में है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि आप मर्म की जो नेचर है, जिस तरह का मर्म है उसका स्टिमुलेशन भी उसी तरह से दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी जगह आप थंब से प्रयास करके आप स्टिमुलेशन दे सकते हैं, क्योंकि मर्म का नेचर, वहाँ की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका नेचर वो सब अलग है। इसलिए तो मर्म को जो कंट्रोल स्टिमुलेशन देने का जो तरीका है वो आप इंट्राफैलेंजियल जॉइंट को यूज कर सकते हैं। कुछ मर्म है जैसे मणिबंध मर्म है, वहाँ इंट्राफैलेंजियल जॉइंट्स को यूज करते हैं। जहाँ तल हृदय मर्म है वहाँ आप इंडेक्स रिंग और मिडिल फिंगर के जो पल्प पार्ट है उससे स्टिमुलेशन देते हैं। बैक साइड के जो मर्म है उनको हाइपोथिनर से आप देते हैं, क्योंकि मर्म का परिमाण और परिणाम दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। परिणाम और परिमाण इसी चीज, जिस तरह का आप प्रेशर देते हैं उसी तरह, क्योंकि आप इंटरफेलेंजियल जॉइंट से दे रहे हैं तो मर्म का स्थान, जो मर्म की जो पेरिफेरी है वो भी उतनी होनी चाहिए जितनी दूरी में आपका इंटरफेलेंजियल जॉइंट है। इसी तरह से मर्म का यदि प्रमाण बड़ा है तो उसके लिए, जैसे बैक साइड के मर्म है उसका प्रमाण कुछ अधिक है, तो वहां हाइपोथिनर जो मसल्स है उनके द्वारा प्रेशर दिया जाता है, और जो और भी कम जिनका परिमाण है उनको आप थंब के पल पार्ट से भी आप स्टिमुलेशन देते हैं। ये कुछ पिक्चर्स है कैसे मर्म का स्थान निर्धारित किया जाता है, और
जैसे एक मैं एग्जांपल आपको दिखाने के लिए लिया है कि क्षिप्र मर्म को आप कैसे निर्धारित करेंगे, क्षिप्र मर्म की लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सो वी कैन यूज द इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ आवर थंब एंड प्रेस ऑन द क्रीज ऑफ, यदि हम अगर अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को अगर हम एक्सटेंड कर दें कंप्लीटली, जो क्रीज बन रही है इस क्रीज के साथ, यदि हम अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको वीडियो पे दिखा रहा हूं, तो जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट है थंब का, यहाँ से इस क्रीज के साथ अगर आप इसको मिला दें और जहां आपका पल्प पार्ट टच करता है, थंब का पल्प पार्ट टच करता है, वो आपका एग्जैक्टली क्षिप्र मर्म का स्थान होगा. तो फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द लोकेशन. इसी तरह से क्योंकि मॉडर्न अभी हर चीज एविडेंस बेस्ड है और रिसर्च के बिना आप इस साइंस को प्रूव नहीं कर सकते. लोग बाग हर चीज को ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई आप अर्धांगुल का कोई मर्म है, कोई आपका 2 फिंगर साइज का है, कोई 3 फिंगर साइज का है, कोई आपका मुष्टि प्रमाण का है. तो स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है. तो वर्नियर कैलिपर्स वगैरह इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करके ये स्टडी हम करवा चुके हैं डिपार्टमेंट में एक, तो वो की जा सकती है. दूसरा आगे मर्म थेरेपी के अंदर हम एक कंट्रोल्ड प्रेशर देते हैं. तो कंट्रोल्ड प्रेशर मींस व्हाट, क्या होता है कंट्रोल्ड प्रेशर, कैसे दिया जा सकता है. अभी तक जो भी मर्मा थेरेपी यूज कर रहे हैं 90% लोग, इवन मैं भी, क्योंकि ओपीडी के अंदर सब चीजें ये सब संभव नहीं हो पाता हमेशा. जब आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा होते हैं तो आपको कंट्रोल प्रेशर का एक आइडिया है फेस रीडिंग ऑफ द पेशेंट. जब आप प्रेशर देते हैं तो सेम टाइम में आप पेशेंट की फेस रीडिंग भी करते हैं. अगर वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं. पर इस चीज को भी आपको एक स्टैंडर्ड करना पड़ेगा. तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज प्रेशर एल्गोमीटर. तो ये एक स्टडी करवाई थी हमने प्रकृति के अनुसार, अलग अलग जो प्रकृति के लोग हैं उनके रुजाकर मर्म के ऊपर यदि हम ये प्रेशर दिया जाए तो किस प्रकृति के लोग कितना प्रेशर इसको टॉलरेट कर पाते हैं, जो मर्म थेरेपी के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जा सके. तो इस तरह की जो रिसर्च में इन चीजों को, जब रिसर्च के द्वारा ये चीजें एस्टेब्लिश होंगी तभी स्टूडेंट बिलीव करेंगे और तभी ये साइंस भी डेवलप होगा. सो आई हैव टेकन दिस टॉपिक मर्म फ्रॉम माय चॉइस, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने मुझे सिर्फ स्रोतस का दिया था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि ये कुछ जो मर्म से रिलेटेड जो है वो चीजें भी मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी मर्म थेरेपी के बारे में काफी चर्चा होती है, तो लेकिन मर्म थेरेपी का क्या स्कोप है, क्योंकि शुरू में क्लियर कट वहां जब मर्मों के परिरक्षण की बात कर दिए तो हमेशा ये क्वेश्चन होता है जब भी आप कोई टॉपिक मर्म थेरेपी से रिलेटेड सिलेक्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर होता है. तो उन चीजों को ही स्टैंडर्डाइज करने की जिम्मेदारी भी हमारी है सेम टाइम में. तो ये कुछ रिसर्च एक्टिविटीज इन डिपार्टमेंट में जो मर्म से रिलेटेड चल रही है. मर्म थेरेपी के जो केसेस हम लोग फ्रीक्वेंटली करते हैं उनसे रिलेटेड है. थैंक यू सो मच. सो इट इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड. थैंक यू ऑर्गेनाइजर दैट गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद all of you. Thank you so much. Thank you very much, sir, for such a knowledgeable lecture, including Srotas and MRM and various research ideas about MRM therapy. All the participants who are having any queries can ask. Session is open for the discussion and the queries. Thank you, ma'am. All participants are requested to ask your query in chat box or raise your hands. I can unmute you so they can ask your query. मैडम नमस्ते. नमस्ते सर. Namaste, sir. This is Dr. Harini. Dr. Harini, please ask your query. Dr. Harini, please ask your query. Yes, sir. Sir, a very nice presentation. Thank you very much for that very informative presentation, sir. I have two questions. The first question is,
in clinical research especially, if we have to evaluate Shrotodushti, are you aware of any validated tests or questionnaires which we can adopt for clinical research, sir? So it is specific for the particular Srotas. Sir, Means any if you are doing research on Pranavaya Srotas, the questionnaire will be different for the Pranavaya Srotas. Yes, sir. Any such validated scales or any such No, thing is available? because Sir? it can be validated according to the symptoms also. Because आप पूरी स्रोतोदुष्टि के अंदर सारे सिम्टम्स लेके तो करेंगे नहीं, आपको पर्टिकुलर कुछ चूज करना है, जैसे आक्रोशन है या विनमन है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, तो अब आपको वो पर्टिकुलर सिम्टम लेके ही आपको क्वेश्चनर डेवलप करना पड़ेगा ना। तो Okay, उसको वैलिडेशन के लिए तो आपको मतलब आपका टॉपिक क्या है और उसका सब्जेक्ट के अंदर जो आपने टॉपिक चुना है उसके बेस पे फिर आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चनर। Okay, sir. Sir, next question is, sir, you spoke about Padabhyanga research. Sir, how was the methodology, sir? I mean, what were the parameters taken for assessment, like maybe objective parameters or subjective parameters? Yes. Basically, this study is because we are Rachana Shari's student, so we designed this study according to the study related to eye, basically first thing. और उसमें भी हमने जो प्रथम पटलगत तिमिर है उसको लिया गया है, और उसमें दो ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप है जिसके अंदर मर्म थेरेपी दी गई है, और दूसरे ग्रुप के अंदर हमने जो आई एक्सरसाइज से रिलेटेड किया है, और दोनों के अंदर पादाभ्यंग का यूज किया है। इसके अंदर दोनों ग्रुप के अंदर पादाभ्यंग सिमिलर रखा है उसके अंदर। शायद एक ग्रुप पादाभ्यंग का तीसरा ग्रुप भी है शायद, इस तरह का मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। और जो रिसर्च जो प्रोटोकॉल है जो उसके वैलिडेशन के लिए है, जो मॉडर्न टूल भी यूज किए हैं, और जो आयुर्वेद के जो लिखे हैं, बेसिकली ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर जो जो प्रोटोकॉल डिजाइन किए हैं उसके बारे में। Okay, sir. So tomorrow, if you will, day after tomorrow, Monday, if you will call me, then I will provide you. Okay, sir. Okay. Thank you very much, sir. Okay, welcome. Any more queries? Anyone who is having queries can ask. All Session is participants are requested. All participants are requested. If there is any more query, then please raise your hand. Is there any query from all participants? I requested you to please raise your hand or write down your query in chat box. Dr. Dharmen Kumar Pandey, please ask your query. I sent you the unmute request. Please ask your query. Dr. Dharmen Kumar Pandey, sir. नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये आपने जो भी पढ़ाया सर, जो भी बताया वो बहुत ही ज्ञानप्रद रहा। विशेष करके मर्म चिकित्सा के बारे में जो स्लाइड्स थे वो बहुत ही अच्छे थे। एक मेरा जिज्ञासा है सर, बहुत सामान्य सी जिज्ञासा है। जो स्रोत की परिभाषा दी गई है श्रवणात् स्रोतांसी, तो इसमें पंचमी विभक्ति लगाई गई है सर, श्रवणात् स्रोतांसी, और हम लोग जैसा कि समझते हैं अपादाने पंचमी। इसको सर थोड़ा अगर और विचार किया जाए इस व्युत्पत्ति को, तो इसको सुश्रुत जो है वैसा भी लिख सकते थे, श्रवणाय स्रोतांसी या श्रवणम स्रोतांसी या श्रवणार्थम स्रोतांसी।
उन्होंने श्रवणात् स्रोतांशी ही क्यों चुना इसके लिए? देखिए सर, ग्रामेटिकली तो आप ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं आती ये पंचमी विभक्ति वगैरह। देखो मैं सही बात होता, मुझे नहीं नॉलेज इसके बारे में। अगर आप ही इसके बारे में एक्सप्लेन करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं तो एज ए एनाटॉमी और एज ए उस साइंस के थ्रू तो मैं कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अपना व्यू रख सकता हूँ, बट व्हाई दे रिटर्न लाइक दैट आई कांट एक्सप्लेन सर। सर क्षमा चाहूंगा मैं, जैसे जब लेक्चर आपका चल रहा था तो क्या है, कोई भी चीज जब डिस्कशन में आती है तो फिर एक तरह से फिर सोचना आदमी शुरू करता है उसके बारे में। जी जी जी, डेफिनेटली। मुझे मेरे मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि जैसे श्रवणात् स्रोतांशी अगर लिखा है सर, तो जैसे कहीं भी अपादाने पंचमी की जो बात आती है तो उसमें जो चीजें आ रही हैं वो चली गई, कुछ भी लेफ्ट बिहाइंड नहीं रहा। सर मैं शायद मैं बता पा रहा हूँ, बता पाने में सक्षम हो पा रहा हूँ, यानी आप बताइएगा। जैसे एक है कि कोई भी चीज आया और कुछ हिस्सा गया और कुछ हिस्सा रह गया। जैसे आपने कहा सर कि उन्होंने सिरा और धमनियों को नहीं लिया है, तो फिर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि सिराओं में और धमनियों में जो रक्त का प्रवाह होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिराएं और धमनियां जो है रक्त से खाली हो जाती हैं, उनमें हमेशा रक्त दौड़ते रहता है। और स्रोतों में अगर उसने श्रवणात् स्रोतांशी की बात की है तो निश्चित रूप से कोई ऐसे चीज का श्रवण हो रहा है जो किसी खास पीरियड में आया, अपना काम किया और फिर वो जगह खाली हो गया। फिर इसकी जो परिभाषा एक और सर आपने बताई कि स्वधातु संवर्णानि वृत्त स्थूलानि अणुनि च दीर्घाणि आकृत्या प्रतान सदृशानि। फिर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जैसे सर जो हर सेलुलर लेवल पे अगर देखा जाए, जैसे जो रिसेप्टर्स होते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर जो होता है, सेमेन पास सर्पेंटाइन रिसेप्टर, क्या स्रोतस जो है उस तरह की कोई संरचना हो सकती है जिसको फर्दर स्टडी में हम लोग ले सकते हैं? तो थोड़ा प्रकाश डालें सर। मेरे ख्याल से जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ना स्रोतस का, देखिए दो पार्ट है। आप स्टडी का मोटिव क्या है, जैसे मैं अगर शरीर रचना से संबंधित हूँ तो मेरा उसके स्वरूप के संदर्भ में रहेगा कि भाई इसका स्वरूप कैसे हम एक्सप्लेन करें, इसको सम धातु समवर्णानी कैसे करेंगे। तो जब जैसे कैडावर के ऊपर जब हम डिसेक्शन करते हैं तो आप उस कैडावरिक जो डिसेक्शन की जो मेथोडोलॉजी रहती है, जनरली जो मेथोडोलॉजी रहती है, उसके बेस पे आप स्रोतस को ना तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैडावर के अंदर आप इस तरह से स्रोतस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन जो आचार्यों ने डिसेक्शन के मेथोडोलॉजी लिखी है ना, उस बेस पे हम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम डिसेक्शन करते हैं तो जो मुझे इन सालों में एक्सपीरियंस हुआ कि अगर आपके पास जब कैडावर का जब आप डिसेक्शन करते हैं, जहां आपके पास फैट आ जाती है और फिर मसल्स आते हैं, इस दौरान यदि आपको स्मॉल जो डर्माटोम्स या यो कहें नर्व फाइबर्स यदि आपको देखने हैं ना, तो आपको स्क्रैपिंग मेथड यूज करना पड़ता है। जैसे कि आप जो रफ कपड़ा होता है, मोटा खादी का कपड़ा हो, उसको यदि आप स्क्रैप करते हुए धीरे धीरे चलते हैं तो आपको बिल्कुल फाइन जो नर्व्स हैं जिनको आप स्कैल्पल या उसके द्वारा नहीं कर सकते आप, तो वो स्वरूप अगर आप देखना चाहते हैं तो, और उसमें भी कंटिन्यू हम ऊपर से पानी चला के ही करते हैं, पानी चलता रहता है, धीरे धीरे स्क्रैपिंग चलती रहती है। स्क्रैपिंग और पानी के साथ साथ स्ट्रक्चर्स जैसा आचार्यों ने लिखा है उसी स्वरूप में दिखाई देती हैं। अभी आप जैसे छोटा सा मैं मांस व स्रोतस का ही लिया था, उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। मांस व स्रोतस को आप देखिए, कोई भी आप बाइसेप्स ले लीजिए, ग्लूटियस मसल ले लीजिए, उनको अगर आप जब स्क्रैपिंग करते जाएंगे तो स्मॉल फाइबर्स के रूप में वो आपको दिखने लगेंगे, उनका स्वरूप वैसा ही दिखने लगेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके पास है या उस तरह की स्टडी है या उस तरह की स्टडी आप करवा सकते हैं, तो
तो आप उन मायोफाइब्रिल्स की स्वरूप को देखेंगे, तो जिस स्रोत से संबंधित है, जैसे अब इसको समझाना सबसे इजी है, जो मास स्रोतस का समझाना इजी है, तो वो मायोफाइब्रिल्स आपको वो एक स्रोतस का रिजेम्बलनेस भी देंगे, और दूसरी बात उसके वर्ण को भी थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे। Dr. Rachna Bharadwaj, I request you to ask your query. I have sent you the unmute request. Dr. Rachna Bharadwaj. जी सर, सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, सर, सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ। सर, हम प्राण व स्रोतस को क्या पल्मोनरी सर्कुलेशन से कोरिलेट कर सकते हैं? देखिए सभी जो चीजें हैं, अब प्राणमय स्रोतस को अगर आप देखेंगे तो प्राणमय स्रोतस का जो मूल है, अगर ये देखेंगे तो हृदय से संबंधित है। और हृदय से संबंधित होने की वजह से, क्योंकि हृदय का मूल जो फंक्शन है, जहाँ गैसियस एक्सचेंज होना है लंग्स के अंदर, तो जो सर्कुलेशन है, जहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है, वो बेसिकली प्राण क्योंकि प्राण का और दूसरे अर्थ में इस तरह से आया भी नहीं है, जैसे आपकी प्राण वायु के संदर्भ में आया है, तो उसी से लेते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। Dr. Saraki Kore, I sent you the unmute request. Please unmute yourself and ask your query. Dr. Saraki Kore. Hello, can you listen me? या Can you hear me? Sir, I would like to see again that video about Kshipra Marma you had said. okay, It was a bit can I complicated. demonstrate you on screen? Yeah, So this is our index finger, and this is yeah. our thumb. Hmm. Yeah. And now I am extending the index and the thumb, Hmm. and this crease is formed, Okay. and this is the interphalangeal joint of thumb. Yeah. Okay, Yeah. now put your this crease on this crease. Interphalangeal joint is put on this crease. Okay, Hmm. now you tilt your thumb, and where the pulp part is touched, now if you are able to see, Yeah. Yes. so this point is known as the Shipramal. Okay. Okay, sir. Thank you. When you give the stimulation to this point, then you can definitely feel the effect. Okay. Thank you, sir. Okay.
Dr. Sneha Srikant Patil, I sent you the unmute request. Please unmute yourself and ask your query. Dr. Sneha Patil. Dr. Sneha Srikant हेलो Patil, हाँ सर please ask आप your सुन query. पा रहे हो मुझे हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ सर मुझे ये पूछना है कि अभी आप आयुर्वेद का बेसिक सब सिखा रहे हो तो हमें रिसर्च के एस्पेक्ट से इसे कैसे देखना चाहिए या फिर इस सभी टॉपिक से हमें क्या समझ के लेना चाहिए रिसर्च का थिंकिंग बढ़ाने के लिए कैसे हम इसके बारे में विचार कर सकते हैं यस, देखिए मेरा स्पेशलाइजेशन जिसमें मैं उसी के बारे में बात करूंगा। जैसे मर्म के रिगार्डिंग है, मर्म थेरेपी के बारे में बात है, तो मर्म थेरेपी के बारे में देखिए, आप जब भी आप डिस्कशन में बैठेंगे, जब आपके डिपार्टमेंट में डीआरसी होगी, जब आपके इंस्टीट्यूट में आईआरआर भी होगी, तो दो तीन चीजें बहुत कॉमनली हैं। पहली बात यह है कि भाई ये शल्य विशारद है, शल्य शास्त्री कहेंगे कि भाई ये शल्य का विषय है, आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर। तो पहली बात यह है कि मर्म के बारे में जो रचना परख लिखी गई है, 4-5 चीजें, और प्राणों का स्थान बताया गया है। आपकी जो स्टडी है वो स्टडी आप 2-3 तरीके से प्लान कर सकते हैं। सपोज आप मर्मों का जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, रचना के अनुसार आपको सिर्फ लिख दिया कि भाई ये स्नायु मर्म है, तो अब स्नायु का मीनिंग, पहली बात तो ये, स्नायु का मीनिंग सिर्फ लिगामेंट नहीं हो सकता। जिस वक्त हमारा टेक्स्ट लिखा जा रहा था, आचार्य जो लिख रहे थे, उस वक्त स्नायु का उनके दिमाग में सिर्फ लिगामेंट मीनिंग हो तो ये संभव ही नहीं है कि आप इस बेस के ऊपर स्नायु मर्म को एक्सप्लेन कर देंगे। तो फर्स्ट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, देन सेकेंड थिंग, अब आप स्ट्रक्चरली उन चीजों को यदि एक्सपोज करते हैं तो आप रचना के बेस पे आ गए। अब स्नायु मर्म के ऊपर आघात होने के जो लक्षण हैं, उनकी रिलीवेंस क्या है, तो बहुत सारी चीजें एनाटॉमी के बेस पे प्रूव की जा सकती हैं, और बहुत सारी चीजें एनाटॉमी, कैडावेरिक एनाटॉमी के बेस पे प्रूव नहीं की जा सकती। उनके लिए आपको यही रिसर्च करनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको तल हृदय मर्म का, एंड दिस इज ए ट्रू एंड रियल स्टोरी। जहाँ से मेरा मर्म थेरेपी के लिए जो जिसके प्रति मेरा रिसर्च का जो आइडिया शुरू हुआ और मर्म थेरेपी पे ही काम करने का जो स्टार्ट हुआ, दैट इज फ्रॉम द इंसिडेंट दैट वाज हैपेंड ऑन गुवाहाटी एयरपोर्ट, and I was traveling from Guwahati to Jaipur. So I have seen that one passenger that was faint, and he was a young boy near about age of 32 years, 30 or 32 years, and 4 to 5 CISF employees, they were standing around them. तो मेरी भी एक सिंपल लाइन में लगा हुआ था कि पहले तो जैसे एक साधारण की तरह हम भी सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, अपने ही मन में क्वेश्चन करके आंसर भी दे ले, पता नहीं क्या हुआ है, छोड़ दिया। लेकिन वो लड़का यंग था एकदम, और सीआईएसएफ वाले भी बहुत आराम से खड़े हुए थे, तो पूछ लिया मैंने, भाई हुआ क्या है इनको, ये पता नहीं, ये अचानक ही गिर गए और ये बेहोश हैं, होश में नहीं। तो मैंने कहा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो वो लोग भी एयरपोर्ट डॉक्टर का वेट कर रहे थे और एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे। तो जब तक मैं कर सकता हूँ, अगर आप अलाउ करेंगे कर लीजिए जो भी करना है। तो मैंने उनको उसमें शूज उतार के और तल हृदय मर्म पे ही प्रयास करना शुरू किया, हाथ के और पैर के तल हृदय। और उनको पहले राउंड के अंदर जब हमने तल हृदय मर्म दिया तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। सेकेंड राउंड भी किया, और थर्ड राउंड के अंदर उस लड़के ने आंख खोली, और जब उससे बात हुई तो उसने बताया कि वो दिल्ली का रहने वाला है, गुवाहाटी आया हुआ था किसी काम से, दिल्ली वापस जा रहा है। तो उसने अपनी डायरी निकाल के दी, और उसमें से उसने टेलीफोन नंबर वगैरह भी दिए, भाई यहाँ यहाँ आप फोन करो। तो उनके पेरेंट्स से, जो गुवाहाटी में उनके फ्रेंड थे, उनको फोन किया। तो वहां से मुझे ऐसा लगा कि भाई तल हृदय मर्म, क्योंकि रिसेंटली उसी दौरान मैंने मर्म थेरेपी के बारे में पढ़ना और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, तो वो मुझे एक एप्लीकेशन करने का चांस मिला और उसका इफेक्ट मुझे दिखा।
उसके बाद हमने इसी स्टडी को, इसी तरह की स्टडीज को डिजाइन करना शुरू किया। तो रिसेंटली जो अभी जो करवा रहे हैं वो पादाभ्यंग का और मर्म थेरेपी का ही है। और इससे पहले भी जो अभी लास्ट टाइम एक स्टडी की थी कि जो एंजाइटी है, जो एंजाइटी के ऊपर किस तरह से ऊर्ध्व जत्रुगत मर्मों का मर्म थेरेपी को स्टिमुलेशन का किया जाए। अभी एक रिसेंट जो स्टडी हम मर्म थेरेपी के ऊपर ही कर रहे हैं कि जो एंजाइटी के जो वर्किंग प्लेस की जो एंजाइटी है उसको स्पेसिफाई किया है। पहला टॉपिक थोड़ा वाइड लगा, उस रिसर्च से ये लगा एंजाइटी तो बहुत तरह की हो सकती है ना, किसी को घर की एंजाइटी है, घर में जो तनाव उसकी एंजाइटी है, किसी को वर्किंग प्लेस की एंजाइटी है, स्टूडेंट को स्टडी की एंजाइटी है। तो उस स्टडी को और पैक्यूलर करने के लिए हमने इस बार सिर्फ जो वर्किंग प्लेस पे जो एंजाइटी है उसके लिए पूर्व जत्रुगत मर्मों के स्टिमुलेशन का एक स्टडी प्लान की है, साथ के साथ ईईजी के द्वारा इस स्टडी को एनालाइज करने की। जब पेशेंट आपके पास है, जब पहली बार आ रहा है तब उसकी ईईजी, और मर्मा थेरेपी के बाद उसकी ईईजी, तो क्या उसके चेंजेज आते हैं, बीटा वेव्स के अंदर क्या चेंजेज आते हैं, ये सब चीजें स्टडी करने के लिए ये प्लान किया है। तो ये स्कोप है, इस तरह के हमारे साइंस को वैलिडेट करने के लिए, अपनी बातों को अच्छे ढंग से कहने के रास्ते हैं। These are the main facts. Sarika ma'am, I think the query session is over now. Please proceed. Thank you, Amit ji. Thank you, Sunil Yadav sir, for such an informative session. And I think all the participants must have benefited from your session. Now I would like to call upon Dr. Nisha ma'am, chairperson of today's session. Madam is currently working as Dean, Fellowship and Postdoctoral Studies in the National Institute of Ayurveda. She is also head of the Department of Kumar Bhirte in National Institute of Ayurveda itself. She is having more than 14 years of clinical teaching and research experience. She is member of editorial board of various journals like Journal of Ayurveda, publication of National Institute of Ayurveda, Journal of Research in Ayurvedic Sciences, official publication of CCRS. She is also member of editorial board of WJAS, Ayush Dhara and Amritam journal. She has given her contribution to develop course material for developing Ayurveda skills in Ayush, and involvement. She has involved in various projects. She has made important contributions in various committees of CCIM like syllabus committee. She has also contributed in various protocol designing committee of Kumar Bhirte in Sri Lanka. She is also working for joint nutritional campaign program of Ministry of Ayush and Ministry of Women and Child Development. Please, ma'am, kindly conclude the session. Thank you, Dr. Sarika. First of all, I would like to congratulate Dr. Sunil Yadav, sir, for delivering a very informative and nice lecture. And sir has very beautifully explored the concept of srotas and marma, which are not only difficult to explain, but it is challenging also. Sir, you are right, very right, that in today's era there is a need to explore this things or basic concepts in a scientific way, and you tried your best, and it was a very nice explanation, and I hope that all the aspirants have benefited from this your lecture, sir. And therefore I congratulate you. And marma and srotas, one of the participant was asking about what are the area, where should we in these lectures, where should we find our scope for research. And this is the best example, because our Ayurveda is a very unexplored science, and in as today's platform, and therefore there is a need, and this search lecture was a very good scope, that we should start from the basic concepts and which are unexplored part of our science, that is srotasas and the marma. Marma is an emerging science nowadays, and it is very much popular, going to be popular, and it is also popular, and sir is giving his full effort in this area and in this science. And sir has very nicely, the slides we have seen,
the slides like pointing out the Shipra Marm or Tal Hirday Marm, and the sir has explained that the pain algometer to use in the science, and that for the extent to measure the extent of the pain in on Rujakar Marm in different Prakriti people. And this was a very very newer concept, and we all should find scopes like this only. This was just a stimulus for all of us, that these are the scopes from where we can find our research areas. And all other lectures will also I hope that all other lectures, next lectures and previous lectures might have given some scope and stimulus for all the Ayurveda research aspirants, and from where we can get our best and what we need as per our need and as per our subject, or as per our interest. So thank you, sir, for delivering such a nice and informative lecture. And the next thing that also I would like to congratulate the organizers for organizing this such a nice, and the topic of today's time, and this is the need of the hour, that for to expand our Ayurveda and to for globalization of Ayurveda, we and to provide scientific evidences. The need of the knowledge of this research methodology is very important for all of us. And as we know that without knowledge, the action is useless. So for getting proper knowledge, this workshop is very much required. And I hope this will also be fruitful or fruitful for all of us. And this is all from my side. And thank you. And I thank the organizing team and all of you, all of the listeners, or all of the participants for showing your keen interest in this area. Thank you all. Thank you very much, ma'am, for summarizing the lecture very beautifully and for emphasizing the need of research methodology in today's era. Thank you once again. Thank you all participants. Thank you, resource person of today's session and chairperson, ma'am. Thank you all. Namaskar. Thank you, Sarika ma'am, for organizing today's session, and thank you for our chairperson, Dr. Nisa Oza ma'am, for concluding this session. And I heartily thankful for today's session, Dr. Sunil Kumar Yadav sir, for very informative and interactive session. And I again thanks to all the participants for active involvement for today's session. The tomorrow's session will start at 6 p.m. sharp. So please join 10 minutes earlier as possible. Thank you once again. Today's session is over now. Thank you.